वाघेला और मनीष जी कापड़िया को कि वो हार अर्पण करें। सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद। भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद। बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम। भारत माता की जय। निखिल जी मद्रासी को मैं विनती करती हूं कि यहाँ पे इस कार्यक्रम के बारे में कुछ 2 शब्द हमें कहें। તમે મંદિરમાં જાઓ તો તમને ગીતાની યાદ આવે, તમે જૈન દેરાસરમાં જાઓ તો કલ્પસૂત્ર અને બાદશાહ સૂત્રની યાદ આવે, તમે મસ્જિદમાં જાઓ તો કુરાનની યાદ આવે અને ખ્રિસ્તીના ચર્ચમાં જાઓ તો બાઇબલની યાદ આવે. તેવી જ રીતે ભારતના વીર સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીની દુનિયામાં ડોક્યું કરીએ તો આપણને એક નામ બિલકુલ લોક જીભે ચર્ચાતું એકમાત્ર નામ અવશ્ય યાદ આવી જાય અને તે નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝ. સુભાષચંદ્ર બોઝના વ્યક્તિત્વને મૂલવવા માટે હું તો બહુ નાનો છું, કારણ કે આપણે જે બધા જ અત્યારે આઝાદીનો આટલો સુંદર શ્વાસ લઈ રહ્યા છે તે આ તમામના વ્યક્તિત્વને, તેમના બલિદાનને આભારી છે. હાઈકુ એ ગુજરાતીનું 17 અક્ષરનું કાવ્ય છે ઉન્મેશભાઈ. એના તણખલા જેવા લઘુદેહમાં ડુંગર જેવા વિરાટ ભાવને સમાવવાની તકલીફ હોય છે, તેવી જ રીતે નેતાજીના વ્યક્તિત્વને શબ્દરૂપી લઘુદેહ આપવો એ મારે માટે ખૂબ જ કઠિન કામ છે. અને એટલા માટે આ વાત વધારે લંબાવતો નથી, કારણ કે તમે જ સુભાષચંદ્ર બોઝ સાહેબની વાતને પ્રસ્તુત કરશો અને તેમના પ્રદાનને આજે આપણે જરૂરથી યાદ કરીશું. આ તકે ઉપસ્થિત આપ સૌનું ધી સદન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી વતી સ્વાગત કરતા મને અત્યંત આનંદ અને ગર્વની લાગણી થાય છે. સાથે મેજર ઉન્મેશ પંડ્યાજી એન્ડ એલ્યુમનસ ઓફ ધ એનસીસી ઓફિસર ટ્રેનિંગ એકેડમી જેઓ આજે મુખ્ય વક્તા તરીકે ઉપસ્થિત થયા છે અને તેમની સાથે તેમની તમામ સમગ્ર ટીમ અને આમંત્રિત સજ્જનો અને સંદાડીઓનું પણ ચેમ્બર વતી સ્વાગત કરતા મને અત્યંત આનંદ થાય છે. ઉન્મેશભાઈ, ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એ 9500થી વધુ સભ્યોનું પીઠબળ ધરાવતી, 125થી વધુ એસોસિએશનોનું પીઠબળ ધરાવતી એક એવી સંસ્થા છે જેમાં દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર બિન રાજકીય સર્વ સ્વીકૃત ઔદ્યોગિક સંગઠન કહી શકાય. અમારા 4 મુખ્ય કામ હોય છે. આપ સૌને મને જણાવતા ખૂબ આનંદ થાય છે. કોરોનાના મહાસંકટ કાળ દરમિયાન ચેમ્બરની ભૂમિકા આ શહેરની અંદર, આ દેશ શહેરના ઉદ્યોગને, ધંધાને ઊંચું લાવવામાં બહુ અગ્રેસર રહી છે. કોરોના ચાલતો હતો ત્યારે સેવા કાર્યો કર્યા, પછી એ રાત્રિ કર્ફ્યુ દરમિયાન રેલવે સ્ટેશનથી લોકોના ઘર સુધી પહોંચાડવા માટેનું કાર્ય હોય કે પછી સ્ટેશનથી ઉતરો એટલે શ્રમિકો માટે માસ્ક અને હેન્ડ સેનિટાઈઝરની વ્યવસ્થા કરવામાં અમે ખૂબ આગળ રહ્યા. જ્યારે ખરો કોરોનાનો સમયગાળો ચાલતો હતો ત્યારે અમારા ઔદ્યોગિક સંગઠનોએ એમના કારીગરોને, કામદારોને સાચવવામાં કોઈ કચાશ રાખી નથી, એમ ચોક્કસપણે હું કહી શકું. કારણ કે કાયદા અને પ્રશાસન માટે બહુ અઘરું કામ હતું. લાખો કારીગરોને કોઈ પણ જાતના કામ વગર બેસાડી રાખવા અને એમને વતન સુધી પહોંચાડવાની કોઈ વ્યવસ્થા નહોતી, કારણ કે લોકડાઉન હતું. એવા સમયે તેઓને અંકુશમાં રાખીને તેમને ફીલ કરાવવું કે અમે તમારી સાથે છીએ, ડોન્ટ વરી. આ જે ભાવ હતો ને, એ ભાવ આ સુરત અને દક્ષિણ ગુજરાતના ધંધા ઉદ્યોગે બહુ સારી રીતે ભજવ્યો હતો. અને એને કારણે કેન્દ્ર સરકારની જેટલી પણ ટીમ આ દરમિયાન આવી, તેમણે સુરતને એકી અવાજે વખાણ્યું. હમણાં જ કેન્દ્રીય ટેક્સટાઇલ મંત્રી સ્મૃતિ ઈરાનીજી સુરત આવ્યા હતા. તેમણે પણ આ જ વાત કરી કે ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગના અને ડાયમંડ ઉદ્યોગના કારીગરોને સૌથી વધારે સુરક્ષિત રાખવામાં સુરત અવ્વલ નંબરે રહ્યું છે. એનો યશ આપણને સૌને સુરતીઓને જાય છે. ચેમ્બર એટલે સરકાર અને ધંધા ઉદ્યોગ વચ્ચેની સાંકળતી કડી. ચેમ્બર એટલે તેમના સભ્યોને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપતી સંસ્થા. સેમિનાર, કોન્ફરન્સ, અધિવેશન દ્વારા અમે અમારા મેમ્બરોને વર્તમાન પ્રવાહો શું ચાલી રહ્યા છે ધંધા ઉદ્યોગમાં તેથી તેમને અવગત કરાવીએ છીએ. અમારું ત્રીજું કામ આંતરરાષ્ટ્રીય તખ્તા ઉપર જે કંઈક વાતો ચાલી રહી છે, જે કંઈક સંગઠનો મજબૂત બની રહ્યા છે તેની માહિતીની આપલે કરવી કે જેથી આપણો વેપારી આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પણ પાછળ રહી જવો જોઈએ નહીં. અને ચોથું, એક્ઝિબિશનના માધ્યમ દ્વારા ઉત્પાદકતાને સીધો
ગ્રાહક અપાવવો. આપ સૌ આ દેશના વીર જવાનો છો, પરંતુ મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે સમગ્ર ભારતનું કોવિડ મહામારીના સમયગાળા દરમિયાનનું પહેલું ફિઝિકલ એક્ઝિબિશનની મંજૂરી સરકારે, કેન્દ્ર સરકારે અને રાજ્ય સરકારે સુરત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સને આપી અને 3 દિવસમાં કોવિડના સંપૂર્ણ નિયમોનું પાલન કરીને 22,000થી વધુ મુલાકાતીઓએ આ સુરત ટેક્સટાઇલ એક્ઝિબિશનની મુલાકાત લીધી અને 700 કરોડ રૂપિયાનો વેપાર કર્યો. આ વાત તમને એટલા માટે જણાવવી જરૂરી છે કે જે પરિસ્થિતિ છે, પરિસ્થિતિની અંદર ચેમ્બરની ભૂમિકા કેવી છે અને ચેમ્બર ધંધા અને ઉદ્યોગના કાર્યો માટે કેટલી સજ્જ છે. અર્થતંત્રને પાટા પર લાવવા માટેની અમારી જે કવાયત છે, કવાયત વિશેની વાત આપને હું સમજાવી રહ્યો હતો. અને હવે સૌથી મહત્વનો પ્રશ્ન આવે કે ચેમ્બરને નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝને શું? ઘણી વાર આવા પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે કે તમે સાહિત્યની પ્રવૃત્તિ કરો, તમે કળાની પ્રવૃત્તિ કરો, તમે દેશપ્રેમની પ્રવૃત્તિ કરો, એને ધંધા ઉદ્યોગને સીધો સંપર્ક અને સંબંધ શું? ત્યારે અમારો પણ એ સ્પષ્ટ જવાબ છે કે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ પહેલા તો નાગરિક છે સુરતનો. એનો એક ધંધા ઉદ્યોગનો જે સભ્ય છે તે પણ સુરતનો પહેલો નાગરિક છે, દેશનો પહેલો નાગરિક છે. અને નાગરિક ધર્મ બજાવવાનું કામ એ પહેલું હોય, બાકી પછી પૈસા તો એની આડ પેદાશ છે. આજે પણ આ કાર્યક્રમ એટલા માટે જ અમારે એક જેવો કિશોરભાઈનો ફોન આવ્યો એટલે અમે તરત જ આ વાતને સ્વીકારી લીધી. એટલા માટે સ્વીકારી લીધી કારણ કે દેશ પ્રેમ એ સૌથી પહેલા આવે છે. આપણો દેશ સુરક્ષિત, સમાજ સુરક્ષિત, તો ધંધા ઉદ્યોગ ઓટોમેટિકલી સુરક્ષિત રહેશે. અને એટલે દેશપ્રેમની ભાવના આપણા સૌનામાં જળવાઈ રહે, વધે એ માટેના પ્રયત્નો જ્યારે આપ આટલા બધા કરતા હો તો અમે તો ખૂબ નાનો સહયોગ આપ્યો છે માત્ર આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરીને. અને એનો જે હેતુ છે તે આજે સફળતાપૂર્વક પાર પડ્યો છે તેમ કહેતા મને આનંદ થાય છે, કારણ કે આટલી વિશાળ સંખ્યાની અંદર આપણે ઉપસ્થિત થયા. મને કોરોના પહેલાના દિવસો યાદ આવે છે કે જ્યારે અમારે આવી એક્સરસાઇઝ ઘણી બધી વખત કરવી પડતી હતી કે જે હોલમાં આપણે બેઠેલા હતા એ હોલમાંથી અનેક વખત એવું બનતું હતું કે કાર્યક્રમ અમારે શિફ્ટ કરવા પડે મોટા હોલની અંદર. અને તે કદાચ અમારી જે મજબૂત ભૂમિકા છે આ સમાજ માટેની, એનું આ પરિણામ છે તેમ કહેતા મને આનંદ થાય છે. વધુ લાંબી વાત નથી કરતો, પરંતુ નેતાજીની વાતો તો આપ ઉન્મેશભાઈ ચોક્કસ કરશો અને એમનું મહત્વ તમે સમજાવશો. પરંતુ આજે આપ સૌનું ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ વતી દિલથી સ્વાગત કરતા મને અત્યંત આનંદ થાય છે. ભારત માતા કી જય. જય હિન્દ. માનનીય શ્રી નિખિલજીએ જે પણ કંઈ કહ્યું કે દેશ પ્રેમ સૌથી પહેલા આવે છે, ખરી વાત છે. અને તે બદલ અમે સૌ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના શુક્રગુજાર છીએ. અમે થેન્ક યુ કહીએ છીએ ઓન બિહાફ ઓફ આન. વી થેન્ક યુ ઓલ ફોર ઇન્વાઇટિંગ અસ ફોર ધીસ સેશન. અને આઈ વિશ કે અહીંયાથી જે પણ લોકો જશે, આજે પરાક્રમ દિવસનો પહેલો પરાક્રમ દિવસ છે, આવનારી દરેક પરાક્રમ દિવસને યાદ રાખે એવો આ પરાક્રમ દિવસ આખું ભારત મનાવે. અને એનો આપણે શરૂઆત કરી છે એવું કહી શકાય, કારણ કે હજી 23મી કાલે છે અને આજે આપણે શરૂઆત કરી રહ્યા છે, તે એનાથી મોટી વાત કોઈ હોઈ જ ન શકે. સો આઈ થેન્ક યુ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ આન ફોર કમિંગ હિયર. હવે આપણે વધુ સમય નહીં લેતા આગળ જ વધશું. શ્રી કિશોરભાઈ વાઘેલા જે આન પરિવાર અને ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ પરિવાર બંને પરિવાર સાથે સંકળાયેલા છે, તેમને હું વિનંતી કરીશ કે આ સમારંભ પર એક આપણને વાત કરે સુભાષચંદ્ર બોઝ પર. થેન્ક યુ. પરાક્રમ દિવસ ઉજવવો કે પરાક્રમ દિવસ જાહેર કરાયો, આ નિમિત્તે થોડીક એક કલ્પના આવીને તરત જ મેં ઉન્મેશભાઈને નોટિફિકેશન મોકલાવ્યું. ઉન્મેશભાઈએ કીધું કે સારું આપણે કરીએ. તરત જ નિખિલભાઈને કીધું. નિખિલભાઈ હમણાં જાહેરમાં કહ્યું સુરતની અંદર પરાક્રમ દિવસની પૂર્વ સંધ્યાએ આવો કાર્યક્રમ કરવો એ આપણું સૌભાગ્ય છે ને એના સહભાગી તમે સૌ થયા એ પણ ખૂબ મોટી વાત છે. ઘણા વર્ષો પહેલા સુરતમાં ગોપીપુરાની અંદર સુભાષ ચોકની અંદર સુભાષચંદ્ર બોઝ આવ્યા હતા અને એ વખતે સુરતના લોકોએ, વેપારી મહાજનોએ એમને મોતીડાએ તોલ્યા હતા એવું મેં વડીલો થકી સાંભળ્યું છે. અને એનું એક સર્ટિફિકેટ છે, કદાચ તમને ધ્યાનમાં આવશે તો ત્યાં ખુરશી પર પાછળથી આપણે મૂક્યું છે, જે સુરતના લોકોએ આપ્યું હતું. આપણે ગોપીપુરાના એક મિત્ર શિરીષભાઈ કરીને આજે એમને કીધું કે મારી પાસે છે, એટલે કીધું લઈ આવો. અને ખૂબ સરસ રીતે આપણે સર્ટિફિકેટ એમણે કોતરાઈ ગયું છે, પણ એને છતાંય એમણે સાચવીને લેમિનેટ કરાવ્યું છે. એટલે સુરતને જે પ્રેમ રહ્યો છે અને એ પ્રેમમાં જે પ્રકારે સુભાષજીએ કીધું હતું તું મુજે ખૂન દો મેં તુમ્हें આઝાદી દૂંગા,
આપણે એ જ દિશામાં આ યુવાનો ખૂબ આગળ વધે, દેશ કાર્ય કરે, એ જ અભ્યર્થના સાથે વિરમું છું. ધન્યવાદ. હવે હું કિશોરભાઈ વાઘેલાને સ્મૃતિ ચિહ્ન આપવા માટે આના એક્સ કમ્પ્યુટર સેલના ઇન્ચાર્જ અવની પંડ્યાને વિનંતી કરીશ કે કિશોરભાઈ વાઘેલાને સ્મૃતિ ચિહ્ન આપીને એમનું સ્વાગત કરે. ડોક્ટર દેવેન્દ્રને હું વિનંતી કરીશ કે માનનીય શ્રી નિખિલભાઈ મદ્રાસીને સ્મૃતિ ચિહ્ન આપીને એમનું સ્વાગત કરે. શ્રી મનીષભાઈ કાપડિયાને સ્મૃતિ ચિહ્ન આપવા માટે હું કશ્યપને વિનંતી કરીશ. આર કશ્યપ. હું નિખિલભાઈ મદ્રાસીને વિનંતી કરીશ. પરાક્રમ દિવસને ઉજવવા માટે ભેગા થયા છે તો મારી તમને બધાને એવી વિનંતી છે કે તાળીઓનો ગડગડાટ ખરેખર ખૂબ મોટો ગૂંજવો જોઈએ. હવે કાર્યક્રમને આગળ વધારતા હું મેજર ઉમેશ પંડ્યાને વિનંતી કરીશ કે એમનો વિષય અહીં આવીને મૂકે. अभी 3 दिन के बाद विश्व का विराटतम गणतंत्र अपना गणतंत्र दिवस मनाएगा और मुल्क में राष्ट्रभक्ति की एक छोटी सी आंधी आएगी. कमनसीबी से 15 अगस्त और 26 जनवरी वो दिन हो रखे हैं जब ये आंधी आती है. और न सिर्फ स्कूल कॉलेजेस में लेकिन गली मोहल्लों में भी, युवा केंद्रों में भी तरह तरह के राष्ट्रभक्ति के गीत बजते हुए सुनाई देंगे. सुनाई देगा, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल. और बात इससे भी आगे बढ़ेगी जब महात्मा गांधी के आंदोलन को भी शर्मसार करने वाली बातें होगी कि चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, शतरंज बिछाकर यहाँ बैठा था जमाना, पर तू भी था बापू बड़ा उस्ताद पुराना, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल. दुनिया में किस्म किस्म के मूर्ख होते हैं, मूर्खताएं होती है, लेकिन बतौर प्रजा आजादी के बाद हमने जो राजसत्ता थी उसकी असर में, उस वक्त की राजसत्ता के असर में एक नवीन किस्म की मूर्खता पाल रखी थी. और वो सबसे गंभीर मूर्खता है, और वो है अपने आप को ही मूर्ख बनाने की मूर्खता. सामान्यतः दूसरों को बेवकूफ बनाने की कोशिश होती है, लेकिन भारतवर्ष ने आजादी के बाद अपने आप को बेवकूफ बनाने का एक कार्यक्रम कुछ दिनों के लिए रखा. और इसलिए हम ये सुनते हैं कि चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, और बिना खड़ग बिना ढाल. दुनिया में कभी न किसी को आजादी मिली है, न मिल सकती है. जो महात्मा गांधी का सबसे प्रिय आदर्श चरित्र था वो था राजा रामचंद्र. वो राम राज्य की बात करते थे. कहते हैं कि देयर आर नंबर ऑफ थियरीज, पर कहते हैं कि जब उनको गोली लगी तो भी वो मुख से उनके हे राम निकला. तो राजा रामचंद्र तो बिना खड़ग बिना ढाल कुछ करते थे ऐसा नहीं था. कोशिश करते थे, लेकिन आखिर में तो शस्त्र उठाने ही पड़ते थे. चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे तुलसीदास
जी का हो या महाभारत के ऊपर रश्मि रथी लिखा राष्ट्र कवि दिनकर ने, उसमें राम की कुछ बात आई हो, हर बार शस्त्र का उल्लेख तो जरूर आता है। दिनकर जी ने रश्मि रथी में कृष्ण के मुंह से अर्जुन को उपदेश देते वक्त राम की कुछ बातें कृष्ण से कहलवाई है। जब लंका की यात्रा को निकली सेना, वानर सेना आगे बढ़ती हुई समंदर के तट पर पहुंची और पुल बनाना नामुमकिन हो गया, ऐसा समंदर तूफान में था। तो उस वक्त राम ने बड़ी विनती की समुद्र से मार्ग देने के लिए, लेकिन समुद्र अग्नि के बगैर शांत नहीं हुआ। इसके ऊपर उन्होंने लिखा कि 3 दिवस पर मार्ग मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे कहते शब्द विनय के अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब सागर सेना कोई नाद उठा था, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सच पूछो तो शर में ही रहती है दीप्ति विनय की। संधि वचन संपूज्य उसी के जिसमें शक्ति विजय की। जिसमें विजय की शक्ति न हो उसकी बात को इस दुनिया में कोई महत्व नहीं मिलता है। इसलिए ये परम मूर्खता होगी कहना कि भारत ने बिना खड्ग बिना ढाल स्वतंत्रता ले ली। इसका जिनको यश दिया जाता है उनके मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी कभी खड्ग और ढाल उठाए बिना, शरसंधान किए बिना अपने पराक्रम नहीं दिखाए। सीता को छुड़वाने के लिए शतयोजन समुद्र पार करके आक्रमण किया। मैं इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करता हूं कि भारत की आजादी कैसे मिली, हम कैसे आजाद हुए। और सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर ऐसा कहा जाता था। ऐसा ब्रिटिश एम्पायर यकायक भारत के ऊपर से अपना स्वाधिपत्य, अपना आधिपत्य वो छोड़ करके कैसे चला गया। और यहां पर जो लोग बैठे हैं, इनके पुरखे जिनके साक्षी थे, एक छोटा सा कार्यक्रम ऐसा ही, जब सुभाष बाबू स्वयं आए थे, आज यहां पर वो एक चित्र स्वरूप में है, जो कि आर्ट ऑफ यूनिटी ने आन को सप्रेम बड़ी मेहनत से बना करके दिया है और आज इसके ऊपर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने माल्यार्पण किया है। लेकिन उस समारंभ में 1938-39 में सुभाष खुद हाजिर थे। और मेरा जहां पर निवास है सूरत के मध्य में, उसके पास एक इलाका है गोपीपुरा का, उसको आज भी कहा जाता है सुभाष चौक। सुभाष चौक पर वहां के व्यापारी श्रेष्ठी और आसपास के प्रबुद्ध नगरजन, इन्होंने मिलकर के सुभाष को आमंत्रित किया था। क्या हाल थी, याद रहे वो सुभाष चंद्र बोस की विजिट हरिपुरा कांग्रेस की विजिट नहीं थी। हरिपुरा कांग्रेस के बाद जब सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच विचारों का टकराव हुआ, जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और महात्मा गांधी ने इसके ऊपर अंग्रेजों के सामने कोई सक्षम युद्ध उठाने का आह्वान नहीं किया और न सुभाष को करने दिया, तब दूसरी टर्म में सुभाष ने विवश होकर के पट्टाभी सीतारमैया से जीतने के बाद भी, जो कि गांधी जी के कैंडिडेट थे, जीतने के बाद भी इस्तीफा देकर के अपने तरीके से राष्ट्र की सेवा करने का निश्चय किया और वह सूरत आए। और निखिल जी ने बड़ी खूबसूरती से कहा चैम्बर की क्या भूमिका है। जब सुभाष खुद थे तो उनको मोतियों से तोल करके सूरत के उस वक्त के, चाहे ऑफिशियल चैम्बर के स्वरूप में नहीं, लेकिन उस वक्त के जो उद्योगपति श्रेष्ठी थे, उन्होंने राष्ट्र सेवा के लिए धन अर्पण किया और सुभाष वहां से अपने स्वतंत्रता संग्राम को शुरू करने के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर की आराधना करके सज्ज हुए। कुछ एक दिन के बाद सिर्फ थोड़ा सा वक्त बीता था
और उनको पता चला कि डॉक्टर हेडगेवार बीमार है, कांग्रेस ने तो मना कर दिया था किसी भी जंग में जाने से और व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ कर दिया था। आचार्य विनोबा भावे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही, दूसरे श्री जवाहरलाल नेहरू, जिनको की कथित तौर पर भारत का पहला प्रधानमंत्री कहा जाता है, राष्ट्राध्यक्ष में तो नाम सुभाष का आना चाहिए, लेकिन दूसरे जो उस वक्त भी व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वो जवाहरलाल जी थे। और ऐसे एक बंदा जाता था, एक जगह पर बैठता था और उसकी पुलिस आकर के धरपकड़ करके ले जाती थी। कोई ज्यादा कार्यक्रम कोई नहीं होता था, आजादी की कोई जद्दोजहद नहीं होती थी, जबकि सुभाष भारत की आजादी के लिए इस विश्व युद्ध को सबसे महत्व का मानते थे, जो कि वो सही थे। याद रहे, सुभाष चंद्र बोस उन गिने चुने 3-4 लोगों में से है जिनकी बुद्धि, जिनकी मेधा सभी में सबसे बेहतर थी। उनके सामने, उनके सम्मुख आने वाले सिर्फ 3-4 ही नाम हो सकते हैं इन दैट ब्रैकेट। एक नाम पौंडीचेरी जो चले गए बाद में, ऐसे महर्षि अरविंद, जिनकी मेधा, जिनकी प्रतिभा विराट थी, या बाल गंगाधर तिलक, जो कि ऐसे ही बुद्धि के धनी थे। इन लोगों के अलावा शायद ही कोई व्यक्ति था, न गांधी जी न जिन्ना। याद रहे, इन लोगों ने तो कोई एग्जाम जिंदगी में कभी पास ही नहीं की थी। जिनको कायदे आजम कहा जाता है ऐसे मोहम्मद अली जिन्ना, और जिनको महात्मा कहा जाता है ऐसे आदरणीय गांधी जी, उन्होंने ग्रेजुएशन तक नहीं किया था। आपको जान करके यकीन नहीं होगा, दे हैड नॉट पास्ड एनीथिंग। फर्स्ट ईयर बीए में जब गांधी जी फेल हुए और जिन्ना ने तो समझ ही लिया था, वो तो अपियर ही नहीं हुए जिंदगी में कभी कि अपना ग्रेजुएशन में जाने का बस ही नहीं है, तो गांधी जी को कब्बा गांधी ने भेजा और जिन्ना को उनकी जो मुस्लिम बिरादरी थी उस वक्त की, उसमें से फंड मिला और वो चले गए विलायत। वहां तो बीइंग मेंबर एट बार बाय आर्टिकलशिप है, किसी वकील के जूनियर रहो कुछ एक साल, वो आपको असाइनमेंट देगा और आप बैरिस्टर एट लॉ हो गए। कोई एग्जाम नहीं होता था, तो इन्होंने जिंदगी में कोई एग्जाम नहीं दिया। लेकिन सुभाष न सिर्फ ग्रेजुएट थे, और बाय द वे आप लोग एनसीसी के एक्स कैडेट्स हो यहां पर जो ब्लैक यूनिफॉर्म में उपस्थित हो, जवान के अफसरान, उनको जान करके खुशी होगी कि सुभाष वॉज द फर्स्ट कैडेट ऑफ द यूनिवर्सिटी कोर, जो कि 1917 में एस्टैब्लिश हुआ था। वो तो ग्रेजुएट भी हुए, बल्कि आईसीएस भी पास हुए। उस जमाने में आईसीएस में टक्कर होती थी दुनिया में से लोगों की, ऑस्ट्रेलियंस एंड न्यूजीलैंडर्स एंड ब्रिटिशर्स एंड कैनेडियंस उस एग्जाम को देते थे हिंदुस्तानियों के साथ, और उन सबको पछाड़ते हुए सुभाष ने वो एग्जाम पास की। वो एग्जाम भारत के स्वतंत्र वीरों में से सिर्फ आगे महर्षि अरविंद ही पास कर चुके थे, लेकिन उन्होंने कलेक्टर बनना, ब्यूरोक्रेसी में आगे बढ़ना और जिंदगी में अपनी ऐशो आराम कबूल नहीं किया। हिंदुस्तान के किनारे आते ही उन्होंने कहा कि मैं मेरे देश को गुलाम बनाने वाली सरकार का कोई अफसर बनना नहीं चाहता। उन्होंने आईसीएस ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। मेरे अपने मुल्क के लोगों को गुलाम बनाना नहीं चाहता। हम बात शुरू कर किए हुए हैं उस सुभाष चंद्र बोस के फंक्शन से, जो कि गोपीपुरा में हुआ था, जिसमें पहली बार मुल्क ने सुभाष पर भरोसा करके सुभाष को धन दिया था। उसके पहले सुभाष ने जो भी धन संचय किया था कांग्रेस के लिए किया था। सूरत का वो फंक्शन पहला फंक्शन था जिसमें कि सुभाष को सुभाष की खुद की प्रवृत्ति के लिए धन मिला था, जिसका उपयोग उन्होंने भागने में किया हिंदुस्तान के बाहर, और वहां से भारत को आजाद कराने के लिए प्रचंड सेना लाने में किया। सुभाष चंद्र बोस जब डॉक्टर हेडगेवार से मिलने गए, क्योंकि कांग्रेस ने तो मना कर दिया था संगठन में जाने का, तो वो टटोरना चाहते थे कि क्या कोई और भारत की ताकत है जो उन्हें मदद कर सके।
क्योंकि उस वक्त संघ उभर रहा था। 1925 में एस्टैब्लिश हुआ संघ, 39 आते आते एक इंडियन फिनोमिनन बन चुका था। तो उन्होंने ये शक्यता तराशने की कोशिश की, लेकिन इतिहास की वो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी रही कि जब वो मिलने गए तो डॉक्टर हेडगेवार बेहोश थे, वो कोमा में चले गए थे और दूसरे ही दिन उनका देहांत हो गया। और सुभाष डॉक्टर हेडगेवार के सिर्फ दर्शन करके वापिस आए, उनको मिल नहीं पाए। इट्स अ सैड बट ट्रू फैक्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और फिर वो अपने घर गए जहां पर अंग्रेजों ने उनको कैद कर लिया। ही वॉज हाउस अरेस्टेड। दुनिया में जंग चल रही थी, दुनिया में जिनका राज्य कभी सिमटने वाला नहीं था ऐसा मानने वाले अंग्रेज एक के बाद एक मोर्चे पर एडोल्फ हिटलर की जर्मन नाजी ब्लिट्जक्रिग के आगे हार रहे थे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस उतावले हो रहे थे कि भारत को स्वतंत्र करने का यह सुवर्ण अवसर है। लेकिन वो घर को जेल में कन्वर्ट कर दिया गया था, बाहर पुलिस बिठा करके, वहां से बाहर जाना मनाही थी, वहां से वो कुछ कर नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने तय किया कि यहां से मैं भाग जाऊंगा, हिंदुस्तान के बाहर जाऊंगा और बाहर से हिंदुस्तान के ऊपर परदेशी सहायता से सेना एकत्र करके, आक्रमण करके, अंग्रेजों को परास्त करके भारत को आजाद कराऊंगा। मौलवी जियाउद्दीन का वेश बना करके एक दिन वो अचानक घर से गायब हो गए। एक मौलवी आया उनको मिलने के लिए और वही मौलवी बाहर गया, लेकिन न मौलवी आया था और न मौलवी गया था। एक नकली दाढ़ी वाला इंसान सुभाष को मिलने के लिए सुभाष ने बाहर से बुलाया था कार में, और खुद वो उसी वेशभूषा में उसी कार में बैठ के चले गए। पुलिस को अंदाजा हुआ कि जो बंदा आया था वही बंदा वापस जा रहा है, लेकिन वो जाने वाला बंदा सुभाष था। वो वेशभूषा का सबसे बड़ा उस्ताद व्यक्ति था। वहां से जाने के बाद उन्होंने बिहार से ट्रेन पकड़ी, बिल्कुल आज का जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर है वहां पर फ्रंटियर मेल जाता था, उसमें बैठ करके वो चले गए। पूरी हिंदुस्तान की पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी, लेकिन वो पेशावर गए। पेशावर से उनको जाना था अंग्रेजों के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज लग रहा था उस वक्त, रशिया उसमें। लेकिन कम नसीबी ये हुई कि रशिया और जर्मनी के बीच जंग के बादल मंडराने लगे। हालांकि ऑपरेशन बारबारोसा अचानक हुआ था, लेकिन पोलैंड के मुद्दे पर उनके बीच में तनातनी चल रही थी। तो नेताजी को लगा कि शायद रशियंस ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने रशिया जाने का विचार जो था वो ड्रॉप कर दिया और वो चले गए इटली होते हुए जर्मनी। जर्मनी में उन्होंने आयोजन किया, एडोल्फ हिटलर के द्वारा कैद किए गए हिंदुस्तानी सिपाहियों को छुड़वा करके आजाद हिंद फौज बनाई। आयोजन किया कि जब एडोल्फ हिटलर की आर्मी रशिया के ऊपर अटैक करे तो किर्गिस्तान, कजाकिस्तान होते हुए नीचे अफगानिस्तान होते हुए भारतवर्ष के ऊपर आक्रमण करने का। लेकिन एडोल्फ हिटलर ने उनको सैन्य सहायता नहीं देते हुए कहा बेहतर है आप जापान चले जाइए और जापान से भारत के ऊपर आक्रमण कीजिए। कारण क्या था? कारण यह था कि जापान आगे बढ़ता हुआ भारत के कुछ इलाकों को जीत चुका था, जहां पर मेरी बेटी पद्मिनी और मेरे भतीजे दोनों को लेकर के अलग अलग वक्त वो दो गए हैं वहां पर, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहला झंडा फहराया था। 1943 में वो मुल्क अंडमान निकोबार जापान ने हिंदुस्तानियों से छीन लिया था। उतना ही नहीं, हिंदुस्तान के बिल्कुल बाजू में बर्मा,
बर्मा तक जापानी फौजें आकर के बैठ गई थी। बर्मा से हिंदुस्तान में दाखिल होना पॉसिबल था। मैंने जब पद्मिनी गई तो वहां उनको भी कहा था कि आप अंडमान जाओ तो दर्शन करना, और जब मुझे जाने का अवसर मिला तो मैं छोटे बच्चे को लेकर के जरूर वहां पर गया और दर्शन किए और करवाए। उस जगह पर जैसे गोपीपुरा में झंडा फहराया गया, वैसा ही झंडा फहरा करके स्वतंत्र भारत की सरजमीन पर स्वतंत्र भारत की सेना के योद्धाओं ने 1943 में अपने स्वतंत्र हथियार उठा करके अपना राष्ट्रगीत, स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रगीत गा करके पहली बार ध्वज को सलामी दी। उस जगह पर जब आप जाकर के खड़े होंगे, वो तीर्थ स्थान है। मैं जब प्रशंसक के साथ गया था, इट वॉज ए मोमेंट ऑफ साइलेंस फॉर मी। ऐसी दो विश्व विभूतियां जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए खून बहाया, वो दोनों विभूतियां उस जमीन के साथ जुड़ी हुई है। एक तस्वीर आप देखेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेल्यूलर जेल की मुलाकात ले रहे हैं और उस जगह पर जा रहे हैं जहां पर कहीं वीर सावरकर की कोठरी हुआ करती थी। कोलो में जद तेल बेलते सावरकर बलिदानी को, वो जहां पर रहा करते थे, उस कोठरी में जाकर के उन्होंने प्रणिपात किए। तो भला बताइए, हिंदुस्तान का सबसे पहला राष्ट्राध्यक्ष कौन हुआ कि जो भारत की स्वतंत्र सरजमीन पर भारत की स्वतंत्र करेंसी जिसने छाप के रखी हो, जिसको जर्मनी, जापान जैसे 17 देशों ने, जिसकी सरकार को मान्यता दे रखी हो अंतरराष्ट्रीय लेवल के ऊपर, जिसकी अपनी सेना हो, जिसके अपने साधन हो, ऐसा सुभाष चंद्र बोस का राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर भारतवर्ष को स्वीकार करना चाहिए, इतिहास को स्वीकार करना चाहिए, या 1947 के बाद इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी उसके राष्ट्राध्यक्ष को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन हमारी कहानी तो अभी रुकी हुई है जब सुभाष बोस जर्मनी में है। तो जर्मनी में वो गए 1941-42 में। जर्मनी में से आक्रमण करना नामुमकिन हो गया। उन्होंने कहा कि आक्रमण आप कीजिए बर्मा से, जापान से। तो उन्होंने पूछा किसी नेवल एक्सपर्ट को कि जापान कैसे जाएंगे। उन्होंने कहा कि जापान तक तो जाने वाली कोई सबमरीन नहीं है, इतनी लंबी यात्रा कोई सबमरीन नहीं कर सकती है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पराक्रम दिवस मना रहे हैं ना हम कल, ये पराक्रम दिवस की पूर्व संध्या है। पराक्रम किसे कहते हैं सुनिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पूछा कि मैं जर्मनी से अटलांटिक महासागर क्रॉस करता हुआ जाऊं और जापान से कोई सबमरीन पैसिफिक ओशन क्रॉस करती हुई आए और कहीं पर दो सबमरीन मिले और मैं जर्मन सबमरीन में से जापानीज सबमरीन में जाऊं, ये पॉसिबल है क्या? विश्व की दोनों महासत्ताएं, जर्मनी और जापान उस वक्त की, दोनों के मिलिट्री एक्सपर्ट्स के लिए भी यह विचार नया था। इतिहास में कोई व्यक्ति ने ऐसा पराक्रम नहीं दिखाया था कि मध्य सागर में एक सबमरीन में से दूसरी सबमरीन में गया हो। यह विचार भी किसी के दिमाग में नहीं आया था। लेकिन सुभाष बोस ने न सिर्फ ये कर दिखाया, लेकिन 1943 आते आते आजाद हिंद फौज ने भारत की सरहदों पर अपना प्रचंड फौजी आक्रमण कर दिया। याद रहे जब आपके कानों में सुनाई दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, तो उन 56,000 योद्धाओं को मत भूलना जो कि इंडियन नेशनल आर्मी के योद्धा थे और जिन्होंने रंगून से आगे बढ़कर के जापान की सहायता से भारत को आजाद कराने के लिए सबसे भीषण आक्रमण कर दिया। बैटल ऑफ इम्फाल दुनिया के 10 मोस्ट ब्लडीएस्ट वॉर्स में से एक है। दो युद्ध टॉप 10 वॉर्स में मान्य है भारत के। एक है बैटल ऑफ सारागढ़ी
जिसमें मुट्ठी भर 22 सिखों ने 10-12 हजार अफरीदी पठानों के सामने लोहा लिया था। वो वेलर की कहानी थी, ये बलिदान की कहानी है। टॉप 10 ब्लडीएस्ट, वो टॉप 10 मोस्ट वेलरस बैटल्स का लिस्ट है। ये दूसरा लिस्ट जो है टॉप 10 ब्लडीएस्ट बैटल्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे रक्त रंजित 10 युद्ध, उसमें शामिल है बैटल ऑफ कोहिमा एंड इम्फाल। इम्फाल तो जीते, लेकिन बैटल ऑफ कोहिमा वो रक्त रंजित लड़ाई थी जिसमें 56,000 में से 28,000 योद्धा रणभूमि में खेत रहे। जब शस्त्रों से बिजली चमके और लहू रंगे धरती, यह वर दे परमेश्वर तो है विजय मिले या वीर गति। विजय तो नहीं मिली, वीर गति अवश्य मिली। 56,000 में से 28,000 यानी कि हर 2 योद्धाओं में से एक उस लड़ाई में खेत रहा, मारा गया। इस बलिदान के आधार पर, इस रक्तपात के आधार पर आजादी की नींव रखी गई है। लेकिन उसके बाद 2 एटम बम्स गिरे जापान पर, असला, दारू, गोला बारूद वगैरह आना बंद हुआ। गोला बारूद के बगैर दुनिया का कोई जंग लड़ा नहीं जा सकता है। बंदूकों की संगीनों के दम पर आजादी नहीं जीती जा सकती है, उसके लिए तो गोलियां चाहिए। पावर में फ्लो फ्रॉम द बैरल ऑफ ए गन, बट समथिंग हैज टू फ्लो फ्रॉम द बैरल ऑफ ए गन। वो है ही नहीं तो लड़ाई कैसे होगी। 15 अगस्त 1945, आजादी को 2 साल बाकी है। भारत की क्या हालत है? किसी को भनक नहीं है कि स्वतंत्रता मिल सकती है। महात्मा गांधी जेल में है, यरौड़ा, बिल्कुल हताश से जवाहर है, बिल्कुल उसी हालत में सरदार वल्लभ भाई पटेल है। सबने ठान लिया कि अंग्रेज अब बड़े लंबे वक्त तक भारत में रहेंगे। 15 अगस्त 1945 को कुछ मुट्ठी भर योद्धाओं को इकट्ठा करके ऑफिसर्स कैडर के आगे सुभाष बोस अपना आखिरी बयान देते हैं। इट वॉज हिज लास्ट पब्लिक स्पीच और उनका अमर वाक्य है। उन्होंने कहा है 15 अगस्त 1945 को, किसी और ने, हिंदुस्तानी ने नहीं कहा है, सिर्फ और सिर्फ सुभाष ने कहा है, फ्रीडम इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। बस स्वतंत्रता मिलने ही वाली है। तुमने लड़ाई लड़ी है और हारे हो, तुमने जंग लड़ी है और हारे हो। लड़ाई हारी है, युद्ध हारा है, पर हिम्मत नहीं हारना। हम ऐसी भीषण पराजय का सामना करते हैं कि हम आगे लड़ नहीं सकते। आजाद हिंद फौज का हम आज विसर्जन करते हैं 15 अगस्त 1945। लेकिन आप सरजमीन हिंदुस्तान को वापस जाओ और कहना कि हमारे अनगिनत साथियों ने कोहिमा के मैदान पर अपने प्राण त्यागे। कहना कि हमने खून बहाया है आजादी के लिए और फ्रीडम इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, वो आने वाली है आजादी। बिल्कुल निराश मत होना, भारत फिर से निद्रा में से जागने वाला है। और वो 28,000 लोग वापस गए, उनमें से 3 बंदे। सुभाष का नारा था, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली पुकार के, कौमी उठा दिशा फहरार के, लाल किले पे गाड़ के लहराए जा, लहराए जा। लाल किले पे गाड़ना था तिरंगा। उस तिरंगे को लाल किले पर तो गाड़ नहीं पाए, लेकिन 3 अफसरों को उठा करके लाल किले में कैद कर लिया गया, जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स थे। कर्नल ढिल्लोन, कर्नल साइगल और कर्नल शाहनवाज। मुल्क को पहली बार पता चला, जबकि रेडियो भी लाइसेंस से रखा जाता था और न्यूज़पेपर सिर्फ अंग्रेजों की जो परमिशन थी उसके बाद कुछ छाप सकते थे। लाल किले में ये 3 अफसर आए, वो फटी हारी सी थकी पराजित फौज आई और हिंदुस्तानियों को पता चला कि ऐसा रक्त रंजित युद्ध हमारी सरहद पर खेला गया है। और हिंदुस्तान जो सोया हुआ था जाग उठा। ऐसा जागा कि हिंदुस्तान का वो योद्धा जिसने अंग्रेज के लिए दुनिया जीती थी, सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, किसके दम पर था?
ज्वेल इन द क्राउन तो हिंदुस्तान था। एक अंग्रेज जनरल स्लिम ने लिखा है कि मैंने बहुत से सिपाही देखे हैं लेकिन सीने में गोली लगने के बाद आगे गिरने वाला तो सिर्फ हिंदुस्तानी सिपाही है। ये जनरल स्लिम ने लिखा है। हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो उनका किताब है उसके ऊपर। और जब वो जापान से लड़ रहे थे, जापानी तो सामुराई थे, तो ऐसा कहा जाता है कि 500 का अगर जापानीज कंटिजेंट कोई कहां पर लड़ रहा था तो 495 लोगों को पहले अंग्रेज मारते, फिर आखिरी 5 हाराकिरी करते, खुदकुशी करते और उसके बाद उस मोर्चे को अंग्रेज फतह कर पाते। तो जब मोर्चे के ऊपर इंसानों की जरूरत पड़ती, योद्धाओं की जरूरत पड़ती, अंग्रेजी सेनापति 7th स्कॉटिश या 21st आयरिश इन्फेंट्री को नहीं बुलाते थे, क्योंकि उनकी ये ताकत नहीं थी। वो तो 7 गोरखा को या 21 जाट को या 19 राजपूत को या 7 सिख को बुलाते थे, क्योंकि इन योद्धाओं के आगे तो यही लड़ सकते थे। द बेस्ट फाइटिंग मैन पावर ऑन द प्लेनेट। इन लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी छोड़ने का निश्चय कर लिया और पहला नेवल रिवोल्ट हुआ 1945-46 में। हिंदुस्तानी फौजों ने अंग्रेजों की हुकूमत को छोड़ देने का फैसला किया। अंग्रेज हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी की मदद से राज कर सकते थे। अगर इंडियन आर्मी कह दे कि हम तुम्हारे साथ नहीं है, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं थी जो कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान के ऊपर राज करने की ताकत दे सके। वो शक्यता नामुमकिन थी। नेवल रिवोल्ट हुआ बंबई और कराची में, अनडिवाइडेड इंडिया में। INS तलवार उस वक्त हर मैजेस्टी सर्विस तलवार शिप था, कम्युनिकेशन शिप था। उसे चारों तरफ संदेशे भेजे कि हम अंग्रेजों की हुकूमत को नहीं मानते। यूनियन जैक को उतार दिया गया, तिरंगा चढ़ा दिया गया। आजाद हिंद फौज का नेशनल एंथम बजाया गया, गॉड सेव द किंग और क्वीन की जगह, और कहा गया कि हम आजाद हैं जब तक लाल किले के उन 3 सिपाहियों को और उनके साथ के 28,000 सिपाहियों को नहीं छोड़ा जाएगा। हिंदुस्तान के ये योद्धाओं की ये बगावत जारी रहेगी। आजादी कैसे आती है? वाइसरॉय ने हुक्म दिया नियरेस्ट कैंटोनमेंट टू क्रश द रिबेलियन। सबसे नजदीक में देवलाली में दस्ते पड़े थे। देवलाली के दस्तों ने जाने से इनकार कर दिया। जो कमांडर था, कमांडिंग ऑफिसर था बटालियन का, उसने कह दिया इट इज नॉट एडवाइजेबल टू सेंड ट्रूप्स फ्रॉम देवलाली। नासिक के दस्तों ने इनकार कर दिया, नॉट पॉसिबल टू गो। जबलपुर का जो अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर था उसने कहा कि मैं जाऊंगा, मैं जाकर के हिंदुस्तान की नेवी का जो ये शिप है उसकी विद्रोह को दबाऊंगा, इंडियन नेवी के बंबई के जो बैरक्स है उनको कब्जे में लूंगा। दूसरे दिन जबलपुर में इंडियन आर्मी की जो कंटिजेंट्स थी उन्होंने बगावत कर दी कि हम नहीं जाएंगे और हमारे कॉमरेड्स इन आर्म्स, हमारे ब्रदर्स, हमारे कंट्रीमैन के सामने नहीं लड़ेंगे। नेवल रिवोल्ट बिकेम द आर्मी रिवोल्ट। वाइसरॉय ने आखिरी आदेश दिया कि बंबई पुलिस को लगाओ, नेवल रिवोल्ट को क्रश करो। ये फहराता हुआ तिरंगा हमारी छाती पर फहरा रहा है। एक पॉइंट आता है जब दुश्मन अपनी हिम्मत गंवा बैठता है। वो पॉइंट नजदीक आ रहा था जब बॉम्बे पुलिस ने विद्रोह कर दिया और मलाबार हिल से नीचे उतर रही जीप पे पुलिस कमिश्नर की वाइफ, उसको क्राउड्स ने घेर लिया और कहा कि आप अपने मुंह से वंदे मातरम और जय हिंद का जय जयकार कीजिए, तभी आपकी जीप को आगे जाने देंगे। और जब मुंबई की पुलिस कमिश्नर की गोरी मैडम ने उठ करके जय हिंद और वंदे मातरम कहा, तो न सिर्फ बंबई का पुलिस कमिश्नर, न सिर्फ हिंदुस्तान का वाइसरॉय, लेकिन अंग्रेज प्रधानमंत्री और रानी भी समझ गए कि सन हैज सेट ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। एक योद्धा जो 15 अगस्त को हारा था 1945 में,
पराजय के बाद भी 15 अगस्त 1947 को विजेता बनकर के बाहर आया। इतिहास में कहां खो गया, नोबडी नोज कि वो कहां गए। 3 कमीशन एक के बाद अपॉइंट हुए हैं। खोसला कमीशन इज इनडिसाइसिव, इवन द लास्ट कमीशन इज इनडिसाइसिव कि नेताजी कहां गए किसी को मालूम नहीं। गुमनामी बाबा थे, कौन थे, कहां गए, रशिया में मारे गए, नोबडी नोज। देयर आर थियरीज, नोबडी नोज। लेकिन हिस्ट्री हैज रिकॉर्डेड वन थिंग कि जब टोक्यो ट्रायल्स चल रहे थे, 2 बड़े ट्रायल्स हुए विश्व युद्ध के बाद। एक था न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स जो कि जर्मनों के खिलाफ हुआ, दूसरा था टोक्यो ट्रायल्स जो कि जापानीज योद्धाओं के खिलाफ था। एक बार किसी ने नामोल्लेख किया सुभाष बोस का, ज्यादा कोई रिस्पेक्ट दिखाए बगैर। वो कोर्टरूम खिंचोखिंच भरा हुआ था, जिनके ऊपर मौत का मुकदमा चल रहा था ऐसे जापानी अफसरों से। सुभाष बोस का नाम आने पर उस हॉल का एक एक जापानी सिपाही खड़ा हुआ और उसने जापानी झुक करके जो जापानी सैल्यूट दी जाती है वो सैल्यूट दी और कहा, लास्ट सैमुराई चंद्रा बोस। हारे हुए जापानी प्रजा का आखिरी सामुराई योद्धा, उसकी बात कर रहे हो, विनय से करो। ये योद्धा जिन्होंने अपने बाहुओं के बल पर, अपने विल पावर से हिंदुस्तान को आजादी दिलवाई है। इतिहास के कौन से पन्नों में गुम हो गए हमें नहीं मालूम है। हमें सिर्फ इतना मालूम है कि ये जो तिरंगा हिंदुस्तान का है वो जब फहराता है तो उनके द्वारा ट्रेन किए गए और आगे बढ़ाए गए उन 56,000 शहीदों की जो आखिरी सांस है, उसके कोई न कोई कण कहीं न कहीं लाल किले पर फहराते हुए उस तिरंगे से जरूर टकराते होंगे और इस मुल्क की हिफाजत करने की आने वाली नस्लों को प्रेरणा देते होंगे। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। अपने सर पे सजा लो कफन साथियों, जिसने अपने सर पर कफन सजा लिया वो सुभाष, वो पराक्रमी सुभाष, वो आखिरी सैमुराई सुभाष, वो भारतीय परंपरा का सर्वश्रेष्ठ योद्धा सुभाष। इसको सम्मानित करने के लिए आज 125वीं जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर मैं आभार व्यक्त करता हूं भारत की सरकार का। उसके राज्य पत्र के आदेश को जैसे ही हाथ में आया तुरंत ही मुझे फॉरवर्ड करने वाले मेरे मित्र किशोर भाई का कि आज हम यहां पर पराक्रम दिवस की पूर्व संध्या पर पराक्रम दिवस का यशोगान कर रहे हैं। आने वाली नस्लें मनाएंगी इस दिन को और दंभ नहीं होगा जो सरकारी दंभ होता है वो इस दिन जो 26 जनवरी और 15 अगस्त 1947 से हमारे साथ जुड़ गया है और 26 जनवरी 1950 के बाद हमसे जुड़ गया है। ये एक सरकारी फंक्शन होगा, ऐसा ये सरकारी फंक्शन नहीं होगा। आदेश भले ही सरकारी है, ये उत्सव प्रजा का होगा। आज नहीं तो कल जैसे गणेश विसर्जन और गणेश चतुर्थी यानी कि गणपति स्थापन ये तिलक महाराज ने शुरू किया था और एक प्रजा का उत्सव बन गया है। मैं कहने का साहस दिखाता हूं कि नरेंद्र भाई ने जो उत्सव शुरू किया है आज पराक्रम दिवस का, एक दिन वो प्रजा के उत्सव में परिवर्तित होगा और प्रजा को राष्ट्रभक्ति की चेतना जागृत करता रहेगा। प्यार से मेरी बात आपने सुनी। कोविड-19 की परिस्थिति में यहां पर इकट्ठे होना इतनी बड़ी संख्या में और अपने पुरखों के पराक्रम को याद करना मेरे लिए तो ये सविशेष आनंद की बात है, क्योंकि जब सुभाष सूरत में आए थे और सुभाष चौक की उस जगह पर खड़े होकर के राष्ट्रध्वज को सलामी दे रहे थे तो उनके बिल्कुल बाजू में एक छोटी बालिका खड़ी थी जिसने वंदे मातरम गाया था। सुभाष ने उसके कंधे पर हाथ रख करके कहा था कि बेटा ऐसा वंदे मातरम, मैं तो हिंदुस्तान के बिल्कुल पूर्वी भाग से आ रहा हूं जहां पर यह गीत लिखा गया था। हिंदुस्तान के बिल्कुल पश्चिमी भाग में इसको ऐसा शुद्ध स्वरूप से गाने वाला व्यक्ति कोई होगा ऐसा मुझे मालूम भी नहीं था, लेकिन इतना ऐसा गान मैंने उधर भी नहीं सुना है, क्योंकि वो सिखाने वाले व्यक्ति का नाम था पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जो भारत के संगीत सम्राट थे और गाने वाली व्यक्ति मेरी दादी जी थी। मेरे लिए बड़े आनंद की बात
कि आज मैं सुभाष को उस दिन याद कर रहा हूँ जो कि पूर्व संध्या है पराक्रम दिवस की, और आपसे बातें कर रहा हूँ। मैंने आपसे इस बात को कहने का साहस इसीलिए किया क्योंकि ये अंतर की अनुभूति थी। आपने प्यार से सुना, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। ખૂબ આભાર. હવે પ્રશ્નોત્તરી માટે सबसे पहले तो मेजर साहब को मैं जितना उनका शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। साथ साथ मैं चेंबर का एक मेंबर हूं, लेकिन चेंबर में पहली बार ऐसा कार्यक्रम देख के मेरा मन भर उठा है। मैं उस धरती के उस कोने से हूं जहां नेताजी का कार्य भूमि था। मैं भले राजस्थानी हूं, वीरभूमि से हूं, लेकिन मेरा जन्म बंगाल में हुआ। और मैं उस शहर से हूं जहां से सबसे पहले बहरमपुर म्यूनिसिपैलिटी, जहां पे सबसे पहला सिपाही विद्रोह का आग लगी थी, उस शहर से मैं हूं, बहरमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से, जहां से नवाब सिराजुद्दौला राज करते थे। वहां सबसे पहले नेताजी सुभाष के अंतर्ध्यान के बाद कमीशन का उठा कि भी कमीशन होनी चाहिए, नेताजी कहाँ गायब हो गए। वो बंगाल असेंबली में गया, डॉक्टर विधान राय दीदन चीफ मिनिस्टर, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को फॉरवर्ड किया। उसके बाद कमीशन बैठी। मैं आप सबसे शेयर करूंगा कि नेताजी के बारे में जो मेजर साहब ने कहा है, उसके एक एक चीज जो है मैंने किताबों में पढ़ी है। बचपन से मैं बंगाली रीडर हूँ, बंगाली मेरा मीडियम रहा है। मैं बंगाली मीडियम में सबसे पहला किताब पढ़ा था आमी सुभाष बोलछी बाय सोइलेन दे। उसके बाद मैंने यूट्यूब में सर्च किया, बहुत सारे चीज ब्लॉक है जो हम जा नहीं सकते, सीक्रेट है, लेकिन मुझे मिला प्रोफेसर डॉक्टर रॉय, जो पूरबी रॉय, जो रशिया तक गई थी केजीबी से सारे डिटेल प्राप्त करने के लिए, लेकिन दिदेन प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी एंड अपने प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने उस चीज को इंडिया आने नहीं दिया। राधा कृष्णन उस समय जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, ही वाज द एम्बेसडर इन यूएसएसआर, उन्होंने उस चीज को ब्लॉक कर दिया। ये सारे चीज भाई साहब मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि जिनको भी सुभाष के बारे में इंटरेस्ट हो वो प्लीज आप 3 किताब को जरूर पढ़िए। गुमनामी बाबा बाय सोम, देन इंडियाज बिगेस्ट कवर अप बाय अनुज धर एंड देन कनंड्रम बाय अनुज धर। बहुत सारे चीज आपको उसमें जानकारी मिलेगी। मैं ऑलमोस्ट जब भी मुझे समय मिलता है मैं यूट्यूब में उनके बारे में जानता हूं। डिस्कवरी चैनल को फाइंड कीजिए, उनका फॉर्चून बताया गया। उनके पास जो फॉर्चून था, वो फॉर्चून जब हिंदुस्तान को आजादी मिली, हिंदुस्तान के बजट उसके सामने कुछ भी नहीं था। उनको सोने से तोला गया था, चेट्टियारों ने सोने में तोला था उनको। उनके पास हीरे जवाहरात की कोई कमी नहीं थी। ऐसा वो सारे फॉर्चून बोलने में शर्म आएगी कि जब जापान सरेंडर करने के बाद जब बोला गया कि आजाद हिंद फौज के फॉर्चून ले जाए, वो फॉर्चून उनके जो साथी थे मिस्टर अय्यर, वो हिंदुस्तान में ले आए और हिंदुस्तान के दिदेन प्राइम मिनिस्टर के अंडर में वो फॉर्चून कहाँ गायब हो गया, किसी को आज तक शायद पता नहीं है। ये हमारे दुर्भाग्य है कि हमें मालूम नहीं है कि कैसे क्या हुआ है, और हमारे जनरेशन को ये पढ़ाया भी नहीं जाता है। तो ऐसा आप सब इसको पढ़िए तो हमें रियल हिस्ट्री मालूम पड़ेगा। और मैं दोबारा देता हूं कि आज मुझे ये सुनने का जो मौका मिला, इसके लिए मैं मेजर साहब का और चेंबर का दोनों का शुक्रगुजार हूं। ऐसा कार्यक्रम मैं बोलता हूं होता रहे ताकि हम देश का सही इतिहास जान सके। थैंक यू. दादी ने वंदे मातरम गाया है, बहुत बड़ी बात। ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે આપ સૌમાંથી કોઈને પણ પ્રશ્ન હોય તો એ પૂછી શકે છે. હા પ્લીઝ. Thank you, sir. I have heard you 10 years before in this building only, and every time I hear you, I think I'm in the presence of some, very powerful force. Like, how is the Josh? Something like that, रोंगटे खड़े हो जाते हैं.
My name is Sachin Sarawgi, and I am very much influenced by my father. I think you must be also very much influenced by your father. मेरे पापा हमेशा मुझे कहते हैं कि whenever you read a book, you are like in the presence of that person. Like sir always said, कि if I want to know something about Subhash Chandra Bose, then I should read that 3 books. So you said that Subhash Chandra Bose played a vital role in making India independent. But today's youth, and please agree with me by raising your hand if you think that I am right. We are becoming slaves to new kind of mentality that is called social media. It has been projected that apna mindset, you know, the way we think, our choices, what we want to select, what we want to buy, who we want to marry, what is attractive, what should be selected, what should be rejected, अपनी choice नहीं है. The social media giants like Facebook है, YouTube है, reject क्यों करना है? कोई वीडियो बनी है तो reject क्यों कर रहे हो? हमारा हक है कि हम उसको देखें. आज सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर 10 चीजें भी ऐसी है जो मुझे नहीं पता, तो कोई तो बड़ी बात है. कोई मेरे बारे में तो इतनी छुप छुपा के बातें करता नहीं. मैं तो एग्जाम में फेल होता था, मम्मी ढिंडोरा पीटती थी कि बच्चा फेल हो गया, ताकि मुझे शर्म आए, ताकि मैं अच्छा पढूं. रैंक आता है तो और बड़ा ढिंडोरा पीटते, पेपर में फोटो आता है. मेरे बारे में तो ऐसी कोई बात नहीं है जो छुपाई जाए. The people who are hiding the facts about Subhash Chandra Bose are so powerful that इतना उनका कंट्रोल है मीडिया पे. The greatest trick that the devil ever pulled was to convince the world that he doesn't exist. वो लोग इतने पावरफुल हैं कि उन्होंने इस तरह से जाल बिछाया है कि वो दिखते भी नहीं है. Something is there about this person which I don't know. Who is blocking that information? मुझे वो बनता भी नहीं पता. So sir, my question to you is कि आज मैं तो सुभाष चंद्र बोस जी से बात कर नहीं सकता. The only point of contact, live point of contact is आप लोग जो इनके बारे में जानते हो. I would like to hear from you that how can today's youth, but first of all tell me guys, you guys who are like 30-25 years, आप लोग मानते हो क्या सोशल मीडिया अपने को बहुत ज्यादा, प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू रियली एग्री टू दिस फैक्ट कि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा घुस चुका है दिमाग में. वी कैन नॉट लिव विदाउट इट. सो सर, हाउ कैन वी बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम दिस माया जाल? थोड़ा सा उसमें टेस्ट डालना सुभाष चंद्र बोस का. वॉट एवर यू थिंक इफ ही वॉज देयर इन व्हाट ही वुड आंसर. थैंक यू वेरी मच. वेरी गुड क्वेश्चन. तो सोशल मीडिया से पहले भी मीडिया तो था, और हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस तो मीडिया का हमेशा से ही रहता है. देखिए, हमारे जितनी भी ब्यूटी क्वींस थी, या जिसको कहते हैं मैको मैन थे, वो सब काले थे. कृष्ण काले थे, वो श्याम जी थे, राम, शंकर, द्रौपदी, कृष्णा नाम था द्रौपदी का. तो लेकिन आज हिंदुस्तान का टीवी खोलोगे तो लगता है सबसे बड़ी समस्या अगर है कंपटीशन में तो 2 है. एक है कैसे गोरा बना जाए, और दूसरा है लंबे काले घने बाल. तो मीडिया का इन्फ्लुएंस तो हमेशा से रहता है. हम भूल गए कि हमारे तो जो सिंबल्स ऑफ ब्यूटी थे वो भी काले हो सकते थे. तो हमारे सर पर तो गोरा चढ़ गया है ना, बिकॉज ऑफ मीडिया. सोशल मीडिया के कारण वो ज्यादा ताकतवर है, उसकी रीच ज्यादा है. लेकिन आपने एक बात सही कही है कि दुनिया में किस्म किस्म की चैलेंजेस है हमारे लिए, लेकिन सबसे बड़ी चैलेंज, द ग्रेटेस्ट चैलेंज वी फेस एज अ नेशन इज टू ट्रेन देम हु विल फेस दोज चैलेंजेस. और इसके लिए बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग सबसे पहली चीज है. सुभाष ने भी तो यही किया. सुभाष वॉज द फर्स्ट कैडेट of the first platoon of the first company of the first battalion of the neo-nascent university corps. और सशस्त्र विद्रोह का विचार भी उस मिलिट्री ट्रेनिंग के बिल्कुल शुरुआत होने से आया. और वो शुरू तो अंग्रेजों ने की थी. यूनिवर्सिटी कोर का स्थापना तो अंग्रेज काल का है. लेकिन अगर हम बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग को भारत में आज के दिन सर्वव्यापी बनाए तो हमारे सामने बड़ी समस्या है. सबसे बड़ी समस्या है, एनसीसी दुनिया का सबसे विराटतम युवा संगठन, 14 लाख कैडेट्स, किसी मुल्क में नहीं है इतने. लेकिन
दुनिया में आज यूरोप का जितना पॉपुलेशन है उससे ज्यादा तो हिंदुस्तान के स्कूली सिस्टम में बच्चे हैं। वी आर द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड जिसकी एजुकेशन सिस्टम पर वो लोड है कि जितना इतिहास में मानव सभ्यता ने कभी देखा ही नहीं था। नियरली 40 करोड़ यंग चिल्ड्रन ऑफ एन एजुकेशनेबल एज। तो हमारे सामने समस्याएं तो है, और सुभाष के बारे में इंफॉर्मेशन ब्लॉक करना ये बड़ा सुव्यवस्थित षड्यंत्र है जो कि समस्या के साथ जुड़ा हुआ है। ये समस्या अंग्रेजों को भी थी, इसीलिए 1917 के बाद यूनिवर्सिटी कोर बंद करके यूनिवर्सिटी यूओटीसी कर दिया गया, यूटीसी कर दिया गया, यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर, और उसमें बंदूक निकाल दी गई ट्रेनिंग में से, क्योंकि उन्होंने देखा कि बंदूक चलाना सिखाना तो बड़ा जोखमी काम है। तो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग का व्याप बढ़े तभी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग माइंड एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी आर प्री रिक्विजिट ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर। और सोशल मीडिया से वही बंदा लड़ सकता है जिसका विल पावर स्ट्रॉन्ग है। मेरे ख्याल से आई हैव आंसर्ड एज सेटिस्फैक्टरीली एज पॉसिबल। अब एक आखिरी प्रश्न, कोई है जो पूछना चाहता है? ठीक है, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट CI आनंद दवे to deliver vote of thanks. जय हिंद ऑल ऑफ यू। मैं देख रहा हूँ कि सब लोग घड़ी की तरफ भी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि आभार विधि ही करनी है मुझे, जो सबसे आखिर में होती है। सबसे पहले वोट ऑफ थैंक्स के अंदर SGCCI के जितने भी पदाधिकारियों ने ये सबसे पहली जो चीज है भारत सरकार की तरफ से जो दी गई कि ये दिन पराक्रम दिन के तौर पे हम लोग मनाए, और पूर्व संध्या के ऊपर सबसे पहला फंक्शन पूरे भारत में हम लोग मिलकर कर रहे हैं, जो आन और SGCCI साथ मिलकर कर रहे हैं। जो शुरुआत परंपरा हम लोग हर बार कहते हैं कि वी आर द पायोनियर्स, तो इसके अंदर भी वी आर द पायोनियर्स हम बोल सकते हैं। तो SGCCI का आन की तौर के एडजुटेंट के तौर के ऊपर मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। स्पेशल थैंक टू किशोर सर कि जिन्होंने हमें इसके लिए समझा कि हम साथ मिलकर इसको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से मना सकते हैं। तहे दिल से शुक्रिया करता हूं मैं सारे यहाँ उपस्थित रहे, छोटे से समय में सबको जो मैसेज भेजे और छोटे से समय में सब मिलकर उपस्थित हो गए, उसके लिए SGCCI के सारे मेंबर्स का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और मेरे जितने साथी अफसर एक SMS के ऊपर इतनी बड़ी संख्या में एक साथ यूनिटी, लॉकडाउन के बाद फिर से हम लोग अलाइव हुए हैं, इसकी आभास मुझे फिर से हो गया है एज ए एडजुटेंट। तो मैं आप लोगों का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू, जय हिंद। अभी हम लोग खड़े हो जाएंगे अपनी जगह के ऊपर। एज यूजुअल आपको मालूम है पहले हम लोग करेंगे राष्ट्रगान और उसके बाद होगी प्रतिज्ञा परेड। पहले प्रतिज्ञा परेड करेंगे, उसके बाद राष्ट्रगीत होगा, फिर अपनी जगह पर सारे लोग फिर से बैठ जाएंगे। एक साथ प्रतिज्ञा परेड शुरू करेंगे। शुरू कर। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सच्चाई और श्रद्धा से अपने राष्ट्र की सेवा करेंगे तथा उसे प्रथम कक्षा के सामरिक, सांस्कृतिक